Okay. Hello, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning, all. Okay, I guess we can start. Yes, sir. Hello, good morning, sir. Good morning. Good morning. Krishna Zadav, I guess you have shared the link in the group, and that's why multiple people are joining with your name. Krishna Zadav. I don't know whether he is joining multiple times or maybe other people are using his link. Okay. No, sir, we have joined using the registration tab. No. Voice is okay. So I was talking about one of the person as Krishna. Okay, okay, no issue, sir. Thank you. ठीक है, I guess we can start. Let's start. नहीं तो ये लोग ज्वाइन होते ही रहेंगे. सर जस्ट अ क्वेश्चन कि Yeah. प्रोजेक्ट सेशन टाइमिंग 8 बजे का ही रहेगा क्या अभी से? Is that हाँ हितेश सर हितेश. हाँ ये तो आपका ऑफिस है ना? हाँ सर ऑफिस रहता है ना तो इसलिए पूछ नहीं रहा था. ठीक है. तो ये बाय मिस्टेकली आई एक्चुअली मैंने 7 बजे का डाला था बट अदर बैच वाज हैविंग अनदर सेशन सो आई जस्ट स्विच दैट सेशन बट आई गेस most of the people are not joining that morning 7 a.m. batch, so from tomorrow we can start with the 7 a.m. ओके सर. Yep. थैंक यू. Okay, is it fine for batch 25? Is it fine for batch 25? No, sir, most of people are there. Sorry? It's not possible for us for batch 25, sir. We are going. 1 or 2 persons, I cannot deal with the 1 or 2 persons. If majority is going with the 7 a.m., then we'll go with the 7 a.m. Yes, sir, 7 a.m. Because Yes, most sir. of the people called Most of the- yesterday, so they are having offices, so they need to start early. It will start at 7 a.m. tomorrow. No, sir, like from batch 25, there will be around 20 plus people, sir. लवकर उठा की जरा 7 वाजता वगैरे. तर 8 वाजता 7 a.m. is best, sir. त्या बॅच मध्ये बाकीच्या हाऊसवाईफ पण आहेत त्यामुळे थोडंसं सर तुम्ही असे एकत्र बॅचचं घेऊच नका कारण की असे सगळ्यांचे प्रॉब्लेम असल्यावर कोणच एकत्र येणार नाही. अरे यार ऍडजस्ट करा ना थोडं कोणालाच सगळ्यांनी. काही प्रॉब्लेम नसेल सर. 7 लवकर वाजता उठायला काय सकाळी प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? हा सर रेकॉर्डिंग मिळू शकते का सर याची? ठीक है, let's start. I don't want to waste my.
Okay, one thing, from tomorrow onwards for batch 23, we will be starting with 7 a.m. Those who wanted to join, you can join in the 7 a.m. Okay, sir. Thanks. हाँ, जिनको बैच 25 वालों को ज्वाइन करना पॉसिबल है तो आप ज्वाइन करो, अदरवाइज ठीक। Okay, let's start with the project called as the investment banking and capital market. Now, before we start, just to want to have some interaction with you guys regarding this topic. So, anyone has any idea about this particular concept? One by one, I don't want disturbance to others. One by one, if anyone knows anything about this. So whenever anyone, What is meant by investment or what is meant by investment banking? I guess you guys have heard about retail banking, corporate banking, right? Yes, sir. yes, sir. Okay. Okay. What is meant by retail banking then? Okay, we'll start with that. Retail banking kya hai? I guess most of the people have attended multiple times the same session, right? So what is meant by Yes. retail banking? The banking services provided by the banks to the individuals, like opening saving account, depositing the money, withdrawing the money, availing ATM facility, credit card facility, and money transfer facility. It is a one-to-one transaction. One-to-one transaction. Okay. Retail banking. Common It is people for transactions. common people. Common people transactions. Okay, fair enough. Common people transaction. So if I'm the common people and I'm owning one of the organization and I started dealing with the banking services, what it will be called as? Corporate banking. Corporate banking. Why? Because multiple credits, debits. So the multiple credit debits are also happening in the retail banking as well, right? No, Business. sir. price value. In case of retail banking, sir, the individual as well as salaried person as well as small vendors can have their accounts and they can manage their day-to-day transactions, sir. But in case of corporate, in case of different banking sector, there are multiple account holders, sir. Okay, so yes, correct. So in case of a retail banking, if I need a loan, I can go in the bank and bank can disburse that loan, right? If in case of a corporate banking, if I need a loan or if I'm in the need of money, then I can go in the corporate bank and I can have avail the multiple times. I can get the loan from the particular bank which I'm having the account. So that is what the main difference: retail banking, corporate banking. In case of a corporate banking, we will be having a large volume of transactions. Just go on mute, please. Time pass के लिए attend कर रहे हो तो do not attend, please. Do not waste your time. Okay. So in case of a corporate banking, if I'm having a large volume of transactions, then we are just call it as okay, the volume of transactions is very high, and again we will be having some kind of a authorization matrix over there. And in case of a retail banking, we may be having some kind of a restricted accesses. We may be having some kind of a limited services which are availed by the individual users. So we generally talk about, in case of retail banking, we talk about an individual user, not a corporate company or not a small case company as well. So that is what the main difference. The another thing is that in case of a retail banking, we can go for the, let's say if I wanted to transfer money to multiple people, I need to go for multiple iterations. So that is what happening in the retail banking. And in case of corporate banking, if I need to transfer money from in one go, if I wanted to transfer money to 100 participants, I can transfer it because we have some feature called as a bulk upload, or we have feature some called as a file upload, or we have some kind of a scheduled transfers as well. So we are scheduling the transfers in the batches, and those batches will get executed at particular dedicated time. So that is what the main difference is
between your retail and corporate bank. Now let's move ahead with the next topic as your investment banking. Now, what is mean by investment banking? Investment banking is what? Anyone? Investment banking means, sir, it is a one organization, middleman with investor and company. Okay, yes. चलो उसको आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ. Let's say I'm running one of the organizations and I need a money to raise my capital. So what is mean by capital before that? Capital. They want to expand their business in future with the No. What is mean by capital first? What is mean by capital? funds. Okay, so capital is nothing but fund. Yes, sir. Yes, Okay, sir. let's consider what is my individual capital. खुद का capital क्या है सोचो थोड़ा. खुद के earning. Cash. Savings. Okay, you are talking about only savings. You are talking about only cash, right? So can we talk about non-cash resources as well? Can we talk about non-cash resources as well? Yes. Yes. Funds. Okay. Policies. Assets. Okay. Now one of the term is asset. Now what is mean by asset? Sir, liability. Liability क्यों बना रहे हो picture में? Asset बोलते हो liability picture में मत लाओ. Immovable properties. ठीक है. So asset is nothing but whatever I'm owning that is giving me some kind of a value, either in cash form or either in non-cash form. So that is nothing but asset. So capital is nothing but whatever I'm owning individually, either in cash form or either in non-cash form. Let's say you have a vehicle, that is also coming under your capital if I'm talking about an individual. Yes. Sir. Okay. If I have a land, that is also coming under your capital. Yes. Yes, sir. Okay. This is what I am talking about regarding one of the individual. And let's say if I'm talking about a company, what will be the capital, their capital? The organization, their shares. Investment. So their total infrastructure, their employees, and what else? Equipment. Machinery. Machinery. Market valuation. Shares. Okay, market valuation, total company का asset कितना है, profit कितना है, revenue कितना है. So these are the some of the metrics we are calculating in order to come up with the capital. Okay, so capital is nothing but one of the entities holding what kind of resources, either cash or non-cash resources, including all, we will be calling it as a capital. Now, sometimes we may be asked about what is meant by net capital. Net capital is what? So net capital, or we can talk about your absolute capital. We generally talk about on high level. Capital is okay, whatever resources I'm holding. But here I have considered only incoming sources. I have not considered outgoing sources, right? In case of a capital. But if I go ahead and if I talk about, this is my incoming source. This is how we generate the business. But while generating this business, these are my expenditures. ठीक है, expenditure क्या है? Employees का salary है. Yes. No. Employees का salary है. Plus क्या है expenditure? Taxes. I'm having loan of one of the bank and which is of 1 CR. So that is also my outgoing source. Yes, no. Yes, sir. Yes. So whatever outgoing source you have, here I talk about you are one of the company. If I talk about individual, ठीक है, I have a vehicle, but on that vehicle I'm running with my EMIs. ठीक है, monthly 10,000 का EMI जा रहा है, right? So that means that is your outgoing source. Yes, sir. Yes. Now, if I consider that vehicle value, total vehicle value, I need to consider that outgoing flow as well. That means whatever I'm incoming sources, I will be treating it as a assets, and whatever outgoing sources are there, I'll be treating it as a liability. Yes, perfect. So I'll be treating it as a liability. So liability means what? What we can talk about in Marathi? क्या बोलते हैं अपन उसको? Liability. क्या बोल सकते हैं? देना. हाँ, मी कोणाचं देणं लागतो असं. हाँ, kind of. ठीक है. So liability is nothing but what we are supposed to give to the others. कि मेरा outgoing flow क्या है, incoming flow क्या है? Incoming flow will become my asset. Outgoing flow will become my liability. Now, asset minus liability, can we say it as my net capital or actual capital which I'm holding? Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. मेरे पास let's say I have a cash of 5 lakhs. Let's say I have a vehicle. ये सब कुछ मैं consider करूँगा asset में. And I'm considering my loan as well. Loan amount
3 लाख का है एंड EMI also रनिंग, तो बहुत सारे EMI है, होम लोन चल सकता है, या आप बोल सकते हो व्हीकल लोन चल सकता है, ऑटो लोन चल सकता है, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। तो लाइकवाइज ये एसेट कंसीडर करो, एक लायबिलिटी कंसीडर करो एंड दोनों का डिफरेंस निकालो, दैट विल बी योर नेट कैपिटल। मेकिंग सेंस? Yes, sir. Okay. Now here we are not talking about individual. This is just for understanding. I have given that example. Now we will be talking about one of the organizations. Okay. Whatever companies are running in the market, for that companies, what is their capital? So that their capital, we know that okay, whatever fund they have invested in their company, that will be coming under as a capital. Whatever investment they have done, whatever infrastructure they have with particular organization, that will be considered as your capital. Now this investment and capital, how it is related? ठीक है, इन्वेस्टमेंट समझा क्या? कैपिटल का बोल दिया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का नहीं समझा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज नथिंग बट व्हाट, लेट्स से आई नीड अ लोन ऑफ, अभी देखो आई एम द वन ऑफ द स्टार्टअप कंपनी एंड आई नीड अ लोन ऑफ अराउंड 10 lakhs, एज्यूम करके चलो आई नीड अ लोन ऑफ 10 lakhs, व्हाट आई विल बी डूइंग, एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट अ नॉर्मल इंडिविजुअल, आई जस्ट नीड टू I have just started with my startup company and I need a funds to run that particular organization. Now, where I'll be reaching out? Banks and personal bank. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। Yes. Instead of financial institute, हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, हम लोग रिटेल बैंक में जाते हैं। पहले रिटेल बैंक में जाऊंगा तो क्या बोलेगा वो? ठीक है, 10 लाख दे सकता है वो? No, sir. No, sir. They will check the Without business having statement. anything, वो बोलेगा No, देने sir, के लिए no. क्या है तेरे पास? Right. What is the security you are holding? कि हाँ ठीक है, मैं लोन तो दे सकता हूँ, but what is the security? What is the guarantee we have? So he'll be checking about the guarantee, right? So no one will be there guarantor as a guarantor. Now you will be asking about relatives. No one will be there to support you, right? ठीक है, रिलेटिव नहीं दे रहा है, कोई बिलीव नहीं कर रहा है, बिकॉज इट इज स्टार्टअप, मुझे पता नहीं आगे जाके चलेगा नहीं चलेगा, राइट? यस। ओके, नाउ हियर व्हाट वी कंसीडर्ड एज, ओके ठीक है, बैंक में चले गए, बैंक बोल रहा है नहीं कुछ तो देना पड़ेगा, ओके मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं, अगेन if I'm going as a corporate bank customer as well, the same situation will happen. Now there will be having one person who will be assisting you in order to raise your capital, but they will not be giving directly the whatever amount you are asking, that amount they will be generating out of the different investors. So one of the entity will be there, and that entity generally we talk about as investment bank. So investment bank is the one kind of a financial institution or body which runs and which keeps an eye on the particular organizations which is running in the market, and which are there to support in their particular corporate whatever businesses they are doing. Those particular investment banks are doing supporting their businesses. Now how they are supporting? Okay, in order to raise their capital, let's say I as an individual I need to raise a capital, so what I'll be doing, I'll be going with the investment bank, I'll be saying that this is the amount I have, original amount, and I'll be investing this much amount and I'll be needing this much amount. So let's say 4 lakh, I have 4 lakh and I just need to raise a 60 lakh, or I have 6 lakh and I need to raise a 4 lakh. So that 4 lakh, in order to raise that 4 lakh, what this investment bank will be doing, they will not be giving directly cash कि हाँ ठीक है ये हमारा cash ले लो, जैसे retail bank आपको देता है. They will not be doing that. They will be just assessing your company's performance. They will be assessing your company's assets, valuations, everything they will be doing, and based upon your competition, market competition, they will be launching your particular securities in the market. They'll be launching your securities in the market. Now security is nothing but हम लोग क्या बोलते हैं generally? शेयर्स बोलते हैं जनरली, हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है आपका एक कंपनी का शेयर्स हम लोग लॉन्च कर देते हैं, सो दैट people will come and buy that shares, and based upon that whatever investment they are doing, that investment amount we can give to the particular company which is there. So this is how the investment bank works. This is what one of the functionality of played by your investment bank. Now what is meant by investment banking? So these are the different types of operations, those are supported by the investment banks, and those investment banks are supporting different types of operations. जैसे हम लोगों ने बोला कि अभी हाँ, assisting corporate customers to raise their capital. Second one is, okay, they can provide some kind of a trading services as well, right? They can provide the trading services, or they can provide the trading web applications or mobile applications anyway. So these kind of services are provided by the investment bank. Now why we are learning about investment bank? Because in case of my project, let's say I have a 3 years of experience and I'm working in one of the organization. Let's say I'm working in TCS. So within TCS, I'm working under BFSI domain, and within BFSI, I'm working under
capital markets as one of the horizontal. Okay, so this is my one of the project which is coming under capital market, and I'm working for one of the customer. Let's say now customer can be anything. Now your customer will be a any one of the investment bank which is having their investment business. So likewise, which is having their security business, which is having their trading services business. Now likewise, the capital market is the place where they can allow this security to be traded. Capital market is the place from where we can buy or sell something. Capital market is the place from where we can buy or sell something. That something is nothing but a security created by your investment bank. Something is nothing but securities created by your investment bank. So investment bank will be creating some kind of a securities, launching it in the market on behalf of any company which they are assisting, and those securities will be traded on one of the platform, and that platform generally we talk about as capital market. And that platform, capital market, is the I can say as a background entity where all these particular dealings are happening. So dealing means we are buying something, we are selling something, someone is buying and someone is selling. So that is what we generally call it as a, okay, it is the dealing between your securities. There will be having some kind of investor, there will be having some kind of a corporate customer, there will be having some kind of individuals, there will be having a group of companies. So likewise, these people are coming here and they are trading on some of the securities, and that place, particular place where they are doing this activity is nothing but we generally call it as a capital market. And this capital market is nothing but we are talking about the area from where, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि APMC market है, या we talk about ठीक है, this is a big market in Pune or this is a big market in Mumbai. So जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक market है जहाँ पे हम लोग को सब कुछ मिलता है. So that is the same scenario will be here in case of a capital market as well. यहाँ पे भी सब securities मिल सकते हैं. किसी को IBM की shares लेना है, they can purchase from IBM. किसी को TCS के shares लेना है, they can purchase from TCS. किसी को कुछ अलग टाइप के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, they can invest in the different types of securities. So likewise, the capital market is the place from where people will be trading on the security. And this investment bank is why we are relating investment bank with capital market here, as one of the role played by investment bank is providing trading services, and that trading services we are testing. So what is my project? First understand what is my project. Okay, I am working for TCS, and on behalf of TCS, I'm working under BFSI vertical. Within BFSI vertical, I'm working under capital markets as horizontal, and within capital markets, I have one of the customer as IDBI, I have one of the customer as HSBC, and for this particular customer, this is my one of the investment bank, which they have provided to develop one kind of a trading application, and for this organization, we are developing trading application so that their investors, their end users can use this application in order to generate a revenue. So that is why we are learning about the investment bank. So investment bank is one of the institute, financial institute, which will be doing all kind of operations related to the investment. जो operations हम लोग आगे देखने वाले कि what are the operations these investment banks are doing in the market. So likewise, these are the some of the banks or some of the clients which I have mentioned here. So you will be accompanied with any one of the client out of this, and you will be working for this client. कि आपको बोलना है कि ठीक है, I am working for RBC. For this RBC is a Royal Bank of Canada. This is an investment bank, and they have provided one kind of a trading application, and that trading application developed by us in TCS. So I'm working in TCS in one of the Scrum team, wherein we are developing a trading application for the RBC, and that application is used by their end users. Making sense? सबको clear है? What is your project? इतना clear है at least high level पे? Yes sir, एक बार Yes, सर sir. प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, मतलब हिंदी में एक बार. Sorry. एक बार रिपीट करेंगे सर, ये जो पूरा स्टेटमेंट आपने बोला ना, व्हाट इज आवर रोल? What is our role? Okay. So my role is there. Let's say I'm working in TCS as a test engineer. Okay. So I'm working in TCS as a test engineer. Within TCS, we know that our organization structure. So our organization's lines of businesses are divided into verticals and horizontals. So out of that vertical, my working vertical is BFSI. So I'm working with BFSI domain, and within BFSI, my particular project is coming under your capital markets. So within capital markets, I have one of the customer as out of this anyone. हम लोग whenever we are going for preparation of your CVs, we'll decide your particular customer and we'll say that okay, this is my customer for which we have developed a trading application, and that trading application tested by us. Nowadays, that application is used by their live users in the production environment, but still we are doing some kind of a enhancement within the application, and that enhancement we are testing. From last 3 years, from last 4 years, we are testing those enhancements which are done for the RBC trading application.
तो likewise sir. this is your role. Clear है role क्या है, हम लोग कहाँ पे काम Yes. कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट क्या है, इतना क्लियर है क्या हाई लेवल पे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Thank इसके you, अंदर sir. क्या जाके हम लोग देखेंगे कि हाँ फंक्शंस क्या है, हम लोग क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व एंड हाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज. सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट के साथ जाओगे तो दे विल बी, जैसे आप बोलते हो रिटेल बैंकिंग में, कॉर्पोरेट बैंकिंग में, दे विल बी आस्किंग अबाउट कंसेप्ट, हाँ ठीक है लोन कैसे होता है, लोन कैसे ओरिजिनेट होता है, सेविंग अकाउंट क्या है, एफडी अकाउंट क्या है. सो लाइकवाइज जहाँ पे वहाँ पे जैसे कंसेप्ट है वैसे ही यहाँ पे भी some of the concepts are there, some of the terminologies are there which will be used and asked by the interviewer in the interview. If you look for the multinational company, this is the best project we have, because most of the companies are demanding this particular kind of investment banking domain knowledge, because this particular, if you are holding this kind of a project, then you have an opportunity to grow your career as a business analyst, grow your career as a client services team, so that you can expand your particular area as well. So that is why people are looking for these functional testers who is having specifically knowledge in the investment banking or specifically knowledge in the capital markets. If you aware about this terminology, they will not be look for your testing knowledge as well. If you are knowing business, you will be able to test the application, because I cannot appoint one any. question होता माझा. Just a minute, I just need to complete my statement. Okay. I cannot appoint any QA other than this particular domain for this kind of a project. Let's say healthcare का project है, healthcare में मैंने retail वाला कोई logistic वाला बंदा hire करके उसको मैं appoint कर सकता हूँ, because I can train him on the particular practices. But this investment banking general voice is breaking. No, sir. No. No, Sir, it's No, clear. clear, sir. clear, sir, clear. No, तो voice break हो रहा है. Is it breaking for everyone? Not No, for sir. me. No, sir, not at all. no, sir. मुझे लगता है कनेक्टेड ठीक है मेरा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सूरज आ रहा है अभी आवाज आपको? हाँ सर, हाँ सर. ठीक है, आप थोड़ा सा नेटवर्क चेक करो, शायद बाकी लोगों को आ रहा है, दैट मींस माय कनेक्शन इज गुड. आई थिंक. Am I audible to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, clearly. Yes, sir. Okay. So what I was telling यार, क्या बता रहा था, क्या भूल गया. Sir, I have What a was my question. last statement? कंपनी में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाँ, let's say. आता होगा तो I was talking about domain expertise. If you are developing a domain expertise in this area, you will be having specifically openings for this particular domain only, because the people who are working in investment banking operations, people who are working in capital markets operation, they do not expect to have the people onboarded in their team without having any background in the investment banking. आप बोलोगे हाँ ठीक है, मुझे टेस्टिंग का नॉलेज है, बहुत सारा है, 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, but I don't have any background related to investment banking. You will not be eligible for applying the position in the investment banking. So that is why this particular project requires a business knowledge, pure domain knowledge. At least you should be having some kind of a basics about this particular capital market, how the capital market works, and what is the trading life cycle and everything. So if you are not having some such kind of knowledge, then you will be appointed as a test engineer in reputed organization or reputed multinational bank as well. You will be having openings for JP Morgan, you will be having openings for Morgan Stanley, you will be having openings for Deutsche Bank, you will be having opening for HSBC Bank. So likewise, you will be having multiple openings for this particular project, because this project, whatever person who are working in this area, they can work in any kind of a sector. Whatever people, let's say if you are talking about ठीक है मैंने investment banking में काम किया, तो generally you will be appointed in the investment banking area. But if you work, if you get hired in the healthcare as well, they will be able to hire you in the healthcare as well, because they expect that कि ठीक है complex project में अगर काम करके आए तो यहाँ पे तो आराम से कर लेगा. So likewise, the market expectations are there. So definitely, if you are appearing for the interview with this particular projects, they will be expecting at least some basics about this capital market. So that basics will be learning further. ठीक है, एटलीस्ट प्रोजेक्ट क्या है समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Someone was asking question. Sir, that was me. हिंदी में बताओ ना सर थोड़ा सा. One by one, क्या बोल रहा है? So, investment banking is nothing but like those are. It might be a bank or it might be a non-bank, right? It's like NBFC as well, right? Yes, NBFC. Okay. Thank you.
Sir, ठीक is है? it capital market is different than NSE and BSE trading platform? Sorry? कैपिटल मार्केट NSE जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहता है अपना शेयर मार्केट में NSE BSE उससे डिफरेंट रहता है क्या? और इट नहीं, कम्स अंडर द नहीं नहीं उसके अंदर रहता wait, है wait, wait, wait. NSE and BSE are the one of the stock exchanges. Okay? यस So NSE and नेशनल BSE, स्टॉक आपको एक्सचेंज maybe you have some knowledge about it, but आपको किसको क्या बोलना ये पता नहीं हो सकता. आपने ट्रेडिंग भी किया होगा, पता नहीं. But NSE and BSE are the stock exchanges from where this particular business is happening. So these NSE and BSE are part of your capital market. सर मोतीलाल ओसवाल जीरोदा ये क्लाइंट हो सकती है Wait. मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, एंजल वन, जो भी है, ग्रो, whatever trading applications, whatever trading services you are looking in the market, those are not investment bankers. First of all, हाँ ठीक है, there are few investment bankers, but those are not investment bankers. They just provide the trading services because these are the simply I can talk them as a brokers. These are the some of the brokers available in. we can call them broker हाँ ब्रोकर ही बोल रहा हूँ ना. Yes, yes तो जीरोधा, एंजल वन क्या है? These are not investment bank. पहले मैं बोल रहा हूँ, these are not investment bank. These are just brokers. उनका काम है ट्रेडिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड करना, उतना ही है. बट इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या है? There are some other areas where investment bank works. तो इन्वेस्टमेंट बैंक भी वही काम कर रहा है, जैसे जीरोधा आपका ट्रेडिंग एप्लीकेशन दे रहा है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट बैंक भी एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है. बट अलॉन्ग विद दिस ट्रेडिंग एप्लीकेशन देयर माइट बी अ डिफरेंट सर्विसेज दे कैन ऑफर टू देयर पर्टिकुलर कस्टमर्स. तो वो सर्विसेज बस अपने को पता होनी चाहिए. एनीवे वी विल बी वर्किंग ऑन दी ट्रेडिंग एप्लीकेशन, तो हम लोग को ट्रेडिंग एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए. दैट्स सर म्यूचुअल फंड वाले भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करते हैं क्या? नहीं फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट असतं. म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द सिक्योरिटी विच इज ट्रेडेड ऑन द कैपिटल मार्केट. म्यूचुअल फंड जैसे आप जो भी बोल रहे हो, म्यूचुअल फंड बोल रहे हो या डेरिवेटिव बोल रहे हो, इक्विटी बोल रहे हो, ये सब कुछ आपके दीज आर द डिफरेंट एंटिटीज विच कैन बी ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट में जिसका ट्रेडिंग होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं जनरली सिक्योरिटीज बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, सिक्योरिटीज बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, या सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं. हम आगे आएगा सब कुछ वो क्या कैसा है. ठीक है, तो लेट्स गो अहेड विद द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शंस. तो इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, कैसे करता है? तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने देखा कि दे आर सपोज टू असिस्ट कॉर्पोरेट कस्टमर्स टू रेज देयर कैपिटल. तो कैपिटल, हाउ दे आर रेजिंग द कैपिटल, अपने को बस ये फंक्शंस पता होने चाहिए. हम लोग सभी फंक्शंस में इन्वॉल्व ऐसे नहीं बोलना है, हम लोग को एक ही फंक्शन में इन्वॉल्व है, हम लोग यहाँ पे बोलना है. हम लोग ट्रेडिंग सर्विसेज में हम लोग इन्वॉल्व है. हम लोगों ने एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसको हमने टेस्ट किया फ्रॉम लास्ट 4 ईयर. ठीक है, यस सर ठीक है. So we just need to understand कि हाँ what are the other services my investment bank is providing to their customers. So one of the services assisting corporate customers to raise their capital. That means what we are talking about as, जैसे पहले एग्जांपल देखा था अपन ने कि one of the organization needing some kind of a funds and this particular capital particular investment bank or particular trading application which is provided here, they will be assisting them in order to raise their capital. So they will be going with the investor, they will be promoting this particular company and they will be saying कि हाँ ठीक है, this is the company which you can invest your money. So likewise they will be promoting your particular products and depends upon that they will be generating some revenue, they will be generating some kind of cash resources, non-cash resources, and that cash and non-cash resources will be allocated for particular company so that they can run their businesses. So that is how they are raising their capital. Now another functioning area is your advisory services. Now this investment bank is also providing, these particular people are also investment banker बोलते हैं हम लोग generally. Investment bankers are also involved in some kind of advisory services. Advisory services generally we talk about two major services. One is a merger and second one is a acquisition. One is a merger, second one is a acquisition. Now what is meant by merger, what is meant by acquisition? merger means two different companies are come with and their raise capital for future growth. Like Vodafone Idea जैसे merge हुए एक. Okay, perfect. So Vodafone Idea is merged together. Why they have merged together? Because the competitors क्या हो रहा था? same domain survive नहीं कर पा रहे थे सर, competition नहीं कर पा रहे थे, उनका बिजनेस लॉस चल रहा था, राइट? Yes sir. अभी ये वोडाफोन और आइडिया ने डायरेक्टली कम्युनिकेट किया होगा एक दूसरे के साथ? नहीं इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू लोग They approach to investment bank.
यस यस। अभी देखो ये भी अप्रोच कर सकते हैं वोडाफोन या आइडिया इंडिविजुअली, वो इन्वेस्टमेंट बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट बैंक भी मार्केट में वॉच रखता है और वो देखता है कि भाई Yes. वोडाफोन का बिजनेस लॉस में, घाटे में चल रहा है, आइडिया भी घाटे में चल रहा है, तो व्हाट दे विल बी डूइंग, इन्वेस्टमेंट बैंक जाके इसको सजेशन देता है कि भाई इसके साथ जाओगे तो थोड़ा सा बिजनेस ऊपर आने में मदद हो सकती है, और आइडिया को भी जाके वही बताएंगे कि हाँ इसके साथ जाओगे तो ये ऊपर आने में मदद हो सकती है। अभी ये जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक ने जाके बोला, they'll be arranging one meeting with the Vodafone and Idea, and they'll be sitting together, and they will be uh, deciding some of the terms and conditions to run their businesses as a merge organization. जैसे हम लोग बोलते हैं Vodafone Idea merge as a VI, right? So they merged as a VI. So they are running their businesses as a VI nowadays, and this merger, this particular whatever merging is happening nowadays. अभी तक पूरा मर्जिंग नहीं हुआ है, जनरली पीछे बैकग्राउंड में सब कुछ मर्जिंग चल रहा है, और ये मर्जिंग के पीछे कौन काम कर रहा है? Investment bank. Investment bank. बैंक इज वर्किंग एज अ मीडिएटर बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ एंटिटीज। क्यों किया इन्होंने? काम नहीं है इसलिए कर रहे हैं? Advisory service. नो सर, नहीं, इन्होंने एडवाइजरी market सर्विसेज क्यों दे research- रहे हैं? इससे कुछ इनको प्रॉफिट होगा तभी जाके ये इन्वेस्ट ये काम कर यस रहे हैं सर, ना। यस सर, Yes, Yes, sir. तो अभी यहाँ से प्रॉफिट कहाँ से निकल रहा है ये? दोनों तरफ से आइडिया और Charge करेंगे ना Vodafone। सर वो। कहाँ से? Commission, sir, from both side. Yes, Some commission percentage. from both the sides. Yes. So can I say that यहाँ से भी commission लिया और वहाँ से भी commission लिया? Can I say that investment bank acts as a broker? Yes, sir. yes, sir. Yes, yes. Clear है? Yes, So sir. investment banks are brokers, but all brokers are not investment bank. Can I make this statement? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? इसका प्रूफ मिल गया क्या है? Yes, Yes, sir. sir. इन्वेस्टमेंट बैंक ब्रोकर है, क्यों? क्योंकि वो ब्रोकर जैसा काम कर रहा है, वो दिस इज हाउ दे रन देयर बिजनेसेस। बट ब्रोकर एप्लीकेशंस क्या कर रहे हैं? वो जस्ट दे आर प्रोवाइडिंग जस्ट ब्रोकरिंग सर्विसेज। क्या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देना है, वहां से उनका कमीशन लाना है, उतना ही काम है उनका, बट यहाँ पे बाकी के काम भी है, राइट? So that's why Yes, generally sir. हम लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक provides brokerage applications और trading applications, and likewise also brokers can provide the trading app. जो मार्केट में आप देखते हो मोतीलाल ओसवाल, ये Zerodha, Angel One, बहुत सारे, so these are some of the brokers available in the market जिन्होंने ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड किया, and they are also registered brokers. ठीक है? जनरली हम Yes, लोग बोलते हैं डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट बोलते हैं, डीपी बोलते हैं। ठीक है, जाने तो आगे जाके बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी ये Yes, sir. मर्जर में क्या होता है? जनरली मर्जर में क्या होता है? अभी देखो मर्जर में यहाँ पे इनका रोल कहाँ पे? उन्होंने सजेशन दिया, इतना ही रोल है, या बाकी का जो डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर्मेलिटीज है, वो भी कंप्लीट यही लोग करेंगे? यही लोग बहुत करेंगे। सारा रहेगा सर, वही करेंगे asset valuation and all. यस, वैल्यूएशन निकालना, दोनों कंपनी का वैल्यूएशन निकालना, आगे जाके बिजनेस कैसे चलाना है, प्रॉफिट किसका कितना लॉस, डायरेक्टर बॉडीशिप कैसे होगा, आगे जाके ये आपका सीईओ सीटीओ कौन बनेगा, पूरा मतलब ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो भी है, ये सब कुछ एडजस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक इज देयर टू हेल्प यू, टू असिस्ट यू। तो मर्जर के टाइम पे वोडाफोन आइडिया को बस डिसीजन लेना है, करना है, तो दे विल बी हैंडलिंग ऑल दिस थिंग। कि अगर आपके अलग अलग इंडिपेंडेंट शेयर चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है, वोडाफोन और आइडिया के अलग अलग चल रहे हैं, तो उनका भी लिस्टिंग करके मर्जर करके एक नया उसको प्राइस देना, ये सब कुछ काम करना है किसका काम है? इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. In case of a merger, both organizations will be having ownership in the organization. Both organizations will be having ownership in the organization. And opposite to this, we have called as a acquisitions. Acquisition में क्या होता है? One company is taking over another company. One company is taking over another company. अभी taking over मतलब क्या? हीरो होना, Sorry? सेपरेट होना सर, सेपरेट। No, sir. Simply No, sir. purchase. Sir, Nokia is Nokia Microsoft. नोकिया माइक्रोसॉफ्ट क्या हुआ है यहाँ पे? कैसे हुआ है? क्या हुआ है बताओ? सर माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया। ओके, अभी As whether well as Nokia sir, is having WhatsApp, direct- Facebook. Actually, WhatsApp, Facebook. No, WhatsApp, Facebook, Is the one of the best examples. Instagram also. Instagram, there are व्हाट्सएप, इंस्टा, multiple. ये किसने परचेज किया अभी? फेसबुक, Facebook. मार्क जुकरबर्ग। Mark Zuckerberg. मेटा ने किया है। मेटा क्या है? Meta is the new name for Facebook, sir. New name for Facebook. नहीं ठीक सर, है, ठीक है, that is fine, ठीक है। सो यस, एक्विजिशन में क्या होता है? अपने को इतना समझ लो कि एक्विजिशन में क्या है। अभी एक्विजिशन में इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ पे पिक्चर में आ रहा है? मर्जर में तो हम लोग को समझा कि ठीक है, ये इसका बिजनेस लॉस में जा रहा है, इसका भी जा रहा है, दोनों को जाके सजेशन दिया,
दोनों का जाके डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी सब कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक ने एडजस्ट किया। तो नाउ इन केस ऑफ एक्विजिशन, अभी वो लोग मार्केट में वॉच रखे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक इज कीपिंग आई ऑन द मार्केट, कहाँ पे क्या चल रहा है, एंड दे कम अप विद द सॉल्यूशंस कि हाँ ठीक है भाई, कौन सा बोला आपने एग्जांपल, कौन सा, फेसबुक और व्हाट्सएप, फेसबुक Instagram. व्हाट्सएप सर, हाँ, यस ठीक है। तो फेसबुक व्हाट्सएप का अलग से बिजनेस चल रहा था, तो उन्होंने क्या दिया, जाके फेसबुक को बोला कि हाँ ठीक है आप लोग को एक अच्छा डील देते हैं, व्हाट्सएप को जाके बोला सेपरेटली कि भाई आपको अच्छा डील देते हैं, आप पैसा लेके बाहर निकल जाओ। तो लाइकवाइज अभी इन दिस पर्टिकुलर केस फेसबुक इज टेकिंग ओवर व्हाट्सएप, तो कैन आई से दैट कि व्हाट्सएप का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा अभी? नो सर, रहेगा सर। नो सर, रहेगा रहेगा पर Absolutely उसका there will ओनर be. से बदल अगर अगर जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ फुल एक्विजिशन है तो, नहीं रहेगा, पार्शियल नहीं रहेगा मर्जर सर। मर्जर है तो गलत, वो अलग अलग चीज है। एक्विजिशन है तो मुझे बताओ उनका ओनरशिप किसका रहेगा? कुछ भी नहीं फेसबुक का रहेगा। ही रहेगा सर, फेसबुक का ओनरशिप रहेगा। विल बी व्हाट्सएप का फेसबुक। खुद का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, व्हाट्सएप का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, रहेगा। राइट? तो एग्जिस्टेंस मतलब वो एप्लीकेशन रहेगा, बट उनके अंदर अगर जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस है वो सब कुछ होंगे, इनके ऊपर डायरेक्ट बॉडीशिप इनका आ जाएगा और दे विल बी हैंडलिंग ऑल द डिसीजंस, उनके पॉलिसीज ये सब कुछ, फेसबुक की पॉलिसीज विल बी एप्लीकेबल फॉर द व्हाट्सएप। So likewise, the acquisition is happening, and this acquisition is again led by the investment bank. Making sense? यस सर। यस सर, अभी Yes, sir. करंट का एक अभी एग्जांपल है सर, आइडिया और वोडाफोन का, जो दोनों एक मर्ज होने के बाद उनकी प्राइस, शेयर प्राइस भी बढ़ गई है। पिछले हफ्ते उसकी प्राइस, पिछले महीने में उसकी प्राइस 9 रुपए पर शेयर थी, अभी 14 रुपीज पर शेयर है अब उनकी प्राइस। Yes, correct. तो अभी ये प्राइस कट क्या है, ठीक है, देखो वो तो प्राइस अभी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड है, एस्पिरेशन है कि अच्छा होगा, बट अभी वो भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़ना ही चाहिए, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग शेयर प्राइसेस, राइट? यस सर, यस सर। So let's come up with this acquisition example. कि acquisition है now, one of the example is Syntel, Atos. यस सर। You are aware about Syntel? यस सर। Hero Honda. यस सर, Hero Honda acquisition है या merger है? नो सर, वो तो Merger है, सेपरेशन है ना, हीरो होंडा। सेपरेट झालेत सर ते. सेपरेशन है वो तो सर। नहीं, बाद में सेपरेशन हुआ, जब वो Hero Honda स्प्लेंडर निकाला था मर्जर तब क्या मर्जर मर्जर था सर। मर्जर, मर्ज. यूजुअली मर्जर था, प्लीज बाद में वो सेपरेट हो गए, दैट इज ओके। बट एक्विजिशन में अभी क्या है, तो सिंटेल, अभी ये को एक्विजिशन कैसे हुआ, ये सिंटेल एटोस का एक्विजिशन कैसे हुआ पता है? नो सर, प्लीज एक्सप्लेन। सिंटेल वाज इन द लॉसेस, सिंटेल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, सब कुछ सही चल रहा था, बट जो उनका ओरिजिनल कैपिटल था वो कैपिटल डिग्रेड होने लगा। सो व्हाट they were looking at the some of the investors, those who wanted to invest the money in the Syntel so that they can come up with the large capital and they can run the business, but उनको investor नहीं मिला, right? तो उनको पैसा नहीं मिल रहा था मार्केट से, तो what they have suggested by the investment bank as, आपका सेंटर का देखो, सेंट्रल वाज हैविंग लार्ज एग्जिस्टेंस, और आई कैन टॉक अबाउट एज मोर एग्जिस्टेंस इन द नॉर्थ अमेरिका, वेयर दे आर होल्डिंग अ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं नॉर्थ अमेरिका सेक्टर। नाउ Atos is a origin based, Indian origin based company, wherein they don't have, they at least then don't have any significant existence in the North America, and they wanted to expand their business in their area. So what they have done, इन्वेस्टमेंट बैंक को पता था कि ये भी इनका ऐसे चल रहा है और इनका वहां पे ये एस्पायरेशन कर रहे हैं, तो अभी ये ग्रोइंग कंपनी था, एक घाटे में जा रहा था। व्हाट दे हैव कम अप विद द रेजोल्यूशन एज, दे रीच्ड आउट टू द इन्वेस्टमेंट बैंक, रीच्ड आउट टू द Atos, सेइंग दैट कि ठीक है, I'll give you a big deal with the Syntel, saying that आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। सो लाइकवाइज जो भी है ये पूरा ब्रोकरेज का वो हैंडल करेंगे। नाउ दे हैव गिवन सजेशन कि ठीक है Syntel को परचेस कर लो, आपको वहां पे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे और आपका बॉडी वहां पे आ जाएगा। Now that is what the one suggestion they have given for the Atos. The same suggestion they have given to the Syntel as well कि भाई anyway आप losses में जा रहे हो, तो अच्छा है कि आप पैसा लेके बाहर निकल जाओ। So likewise they have given the suggestion to the Syntel as well कि भाई आपका जो चल रहा है वो business already losses में है, तो आपको मैं बेस्ट डील देता हूँ, ये Atos आपको ये परचेस करेगा, इतना वैल्यूएशन आपको देगा और आपको वहां से निकलना है। So likewise, they have given suggestion to the Atos as well as Syntel, and what they have come up with is कि हाँ ठीक है, they sit together and they have come up with the acquisition agreement wherein the investment bank has done all the formalities. So that is how the acquisition happened in this case. Nowadays, if I talk about Syntel,
whether I am talking about only Centel or I am talking about Atos Centel. Atos Center. Atos Center. के पीछे नाम लग गया किसका? Atos का. Now this is, though it is looking like a merger, but it is not a merger, it is a acquisition. Okay. सर टाटा और जैगुआर और टाटा रेंज रोवर भी बोल सकते हैं ना इसमें एक्विजिशन Yes, में? बोल सकते हैं. There are multiple examples. There are multiple एक्वायर examples. किए हैं जगुआर, दे आर Sorry? नॉट मर्जर. ठीक है, जो भी है, अरे but भाई- at least आपको डिफरेंस समझा क्या सबको? यस यस. Yes sir. Yes सर sir. यस सर अभी एक्विजिशन में क्या है कि अभी देखो, कभी भी मर्जर और एक्विजिशन होता है, कोई भी मार्केट में मर्जर या एक्विजिशन होता है तो इसका इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट पे भी होगा, शेयर प्राइसेस के ऊपर भी होगा, प्लस इसके वजह से बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, राइट? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि बिकॉज दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो पार्ट ऑफ वन ऑफ द कैपिटल मार्केट, तो उनका भी सिक्योरिटी मार्केट। तो जैसे ही ऐसा कुछ मर्जर या एक्विजिशन ऐसा कुछ इवेंट होता है तो इट विल इम्पैक्ट टू कैपिटल मार्केट एज वेल, तो जो रनिंग सिक्योरिटीज है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो दैट इज हाउ द इन्वेस्टमेंट बैंक टेक्स केयर अबाउट ऑल दिस, ठीक है? यस सर. क्लियर है यहाँ तक यस सर. एवरीवन? यस Yes सर. sir. ओके। इन बोथ द केसेस सर एम्प्लॉइज तो सेफ होते हैं ना? नहीं अभी मैंने शायद वही स्टेटमेंट आगे कैस्केड नहीं किया, ठीक है? ठीक है. ज्यादा ओके. ठीक है, Okay, sir. वो एक्चुअली क्या है कि whenever this particular merger and acquisition happening, automatically it will impact to the internal employees as well. तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आर पार्ट ऑफ योर मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन कभी भी होता है तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस बहुत सारे होंगे, पॉलिसीज चेंज होंगे, बहुत सारे पॉलिसीज अपडेट होंगे, ओनरशिप चेंज होगा, डायरेक्टर बॉडी शिप चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। तो लाइकवाइज अगर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए हम लोग को बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उसी का पार्ट एक होता है जनरली यू कॉल इट एज अ फायर कर दिया, बोलते हैं अपन यस फायर कर दिया, बोलते हैं अपन। ले ऑफ चीज पता है सबको? ले ऑफ क्या होता है? यस, ले ऑफ वी हैव हर्ड सम. तो कभी भी ऐसा कुछ होता है ना मर्जर या एक्विजिशन, समझ लो कि कुछ ना कुछ आने वाला है, ऐसा सीन, ठीक है? और ये मर्जर या एक्विजिशन ऐसा वन डे में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक रात में कल डिसाइड किया और आज हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इट टेक्स टाइम। तो ये सब कुछ सेटल होने में टाइम लगता है, 2-3 साल 4 साल भी जाता है मर्जर एक्विजिशन पूरा, ठीक है? क्लियर है? तो ये एनीवे आपके ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस पे इम्पैक्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं विद इन सेंट्रल विद इन एटोस सबके ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो सबके ऊपर पॉलिसीज चेंज हो सकती है, ज्यादातर एटोस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट सेंट्रल पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? यस नो? यस सर. ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज दे कैन आल्सो प्रोवाइड वन काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग एप्लीकेशन। जैसे बाकी ब्रोकर्स ने एक एप्लीकेशन दिया है, वैसे दे कैन आल्सो प्रोवाइड अ ट्रेडिंग एप्लीकेशन, और बोलेंगे कि हाँ चलो यहाँ से भी पैसा मिल रहा है तो लेते हैं, राइट? So likewise, they can provide a trading application and acts as a broker, and they can provide a trading platform in order to sell and buy the securities from the open market. तो investors को दे सकते हैं, end users को दे सकते हैं, they can provide a trading platform, और वो trading platform से जो पैसा आ रहा है वो भी उनका revenue बन सकता है। So that is another services they are offering to the end customer. Fourth point. बोलो नको। Okay, so what was the point? Okay, fourth point I was talking about as listing of companies on the stock exchange. Now what is mean by listing? What is mean by listing? जहाँ पे सर पब्लिकली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगी कंपनीज, वहाँ पे लिस्ट करना पड़ता होगा इनको। company enters in the share market. It is available for trading. तो आप मुझे बताओ इन दिस केस ये ब्रोकर का एप्लीकेशन। अभी लेट्स से आप कैसे इन्वेस्ट करते हो कि जीरोधा के साथ बिलीव करना है नहीं करना है? आप कैसे बिलीव करते हो कि इसके ऊपर अकाउंट ओपन करना है नहीं करना है? आप कैसे बिलीव करते हो? बिकॉज़ दे आर रजिस्टर्ड ब्रोकर्स सर। दे आर रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, उनके रिव्यूज देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग वो उसमें वो यूज करना हम लोग डिसाइड करते हैं, राइट? So that means those are registered participants in the capital market, stock exchange पे उनका registration है, so they cannot default on any condition, right? That is what I assured about it. Yes, no? Yes, sir. अगर वो registered broker है तो मुझे पता है कि मेरा पैसा लेके कहीं भागने नहीं वाला, right? That is what I believe, right? Yes sir. Yes, sir. Okay. So the same case is with the trading applications as well. जैसे अभी मैंने बोला कि कोई भी कंपनी है, तो अगर कंपनी को
स्टॉक एक्सचेंज पे। अभी देखो ये जैसे मैंने बोला कि ये ब्रोकर है, जैसे ब्रोकर का ऑब्लिगेशन है तो वैसे कंपनीज का भी ऑब्लिगेशन है कि आपको यू शुड बी रजिस्टर्ड योर कंपनी ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज। तो आपका कंपनी अगर आपको ट्रेडिंग में लाना है, आपकी सिक्योरिटीज अगर मार्केट में लानी है, तो आपका पहले प्रायर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन होगा, फॉर्मेलिटीज होंगी, तभी जाके आपकी सिक्योरिटी मार्केट में लॉन्च हो सकती है। तो कोई भी कंपनी आया, लेट्स से आई एम रनिंग माय स्टार्टअप, आई हैव स्टार्टअप एज लेट्स से न्यूजेट। So if I wanted to become a public company, if I wanted to become a public, अभी public मतलब क्या है, जनरली मुझे अगर इन्वेस्टर्स का पैसा लेके अगर मुझे मेरा कंपनी ग्रो करना है, तो इन दैट केस आई मे बिकम अ पब्लिक कंपनी इफ आई आस्क अबाउट दैट पर्टिकुलर सर्विसेज। तो अभी ये सर्विसेज के लिए इन ऑर्डर टू अवेल दैट सर्विसेज कि मुझे शेयर लॉन्च करना है, फिर इन्वेस्टर्स आएंगे, वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा मेरे पास आएगा। तो अगर ये फैसिलिटी अवेल करना है, तो आई हैव अ प्री कंडीशन एज I need to register my company on the stock exchange, and that registration of your companies on the stock exchange for the very first time will be called as listing of your company on the stock exchange. Company listing clear है? What is mean by company listing? आपका कंपनी का लिस्टिंग होगा स्टॉक एक्सचेंज पे, तभी जाके आपकी सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। अदरवाइज विदाउट लिस्टिंग यू कैन नॉट ट्रेड एनीथिंग। हाँ, ये स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, बट देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म जो अपने यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, अपने यहाँ पे बैन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओटीसी मार्केट। व्हाट इज मीन बाय ओटीसी मार्केट, किसी को पता है? ओटीसी नो सर। ठीक है, जाने दो। ओटीसी इज ओवर द काउंटर बोलते हैं। ओवर द काउंटर जहाँ पे ये जैसे स्टॉक एक्सचेंज है तो वहाँ पे रेगुलेशंस है, तो ओवर द काउंटर में ज्यादातर रेगुलेशंस नहीं है, तो वहाँ पे देयर आर चांसेस ऑफ डिफॉल्ट। तो कोई भी बंदा वहाँ पे डिफॉल्ट कर सकता है, बट स्टॉक एक्सचेंज में डिफॉल्टिंग के चांसेस कम रहते हैं। तो दैट्स व्हाई वी गो इन द रेगुलेटेड बॉडी। तो रेगुलेटेड बॉडी मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि भाई आपका कंपनी का लिस्टिंग करो, तभी जाके आपकी सिक्योरिटी आगे जाके ट्रेड हो सकती है। तो अभी लिस्टिंग के लिए आपका कंपनी का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना है, इवेल्युएशन निकालना, आपका एनालिसिस करना, आपका पास परफॉर्मेंस निकालना, बैलेंस शीट देखना, ये सब कुछ काम इन्वेस्टमेंट बैंक करता है। एंड दे कैन असिस्ट यू इन लिस्टिंग ऑफ योर कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस दे कैन चार्ज फॉर द कंपनी। ठीक है, आपको ये मैं लिस्टिंग करके देता हूँ। उसके बाद अभी लिस्टिंग तो हो गया, आपका लिस्टिंग हो गया, बट बिफोर दैट लिस्टिंग आपको इनिशियली लोगों को, जब लेट्स से once my listing is done on the stock exchange, I need to give some kind of a securities for the investors, right? So in this case, if company is launching, let's say I am a registered company on the stock exchange. अभी stock exchange क्या है? What is mean by stock? Stock exchange is a Purchase. it is a platform where we can buy and sell stocks and we can invest also. It is a platform. जैसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल मार्केट का एक हम लोग बोलते हैं अहम हिस्सा, हम लोग बोलते हैं ना कैपिटल मार्केट एक अहम हिस्सा है आपका स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होता है सब कुछ। अभी देखो इसको क्या बोला है, एक्सचेंज बोला है ना? यस। तो एक्सचेंज किसका होगा? स्टॉक का एक्सचेंज होगा, राइट? तो स्टॉक मतलब क्या हम लोग बोलते हैं जनरली, अभी स्टॉक का आगे जाके हम लोग डिटेल में देखेंगे कि स्टॉक मतलब क्या है, बट स्टॉक मतलब हम लोग बोलते हैं जनरली शेयर्स बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं या इक्विटी बोलते हैं। तो कोई भी कंपनी का अगर शेयर मार्केट में आता है तो उसको ट्रेडिंग करने के लिए समवन विल बी बाइंग एंड समवन विल बी सेलिंग, राइट? तो जो बायर है एंड सेलर है, इन बिटवीन दिस जो इनका कैश का जो एक्सचेंज है, या कैश या एसेट, सिक्योरिटी एंड कोलैटरल, हम लोग जनरली बोलते हैं कोलैटरल। अभी कोलैटरल क्या है बाद में बात करते हैं। तो सिक्योरिटी एंड जो आपका कैश है, तो ये एक्सचेंज होने वाला है। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मुझे क्या देना पड़ेगा? लेट्स से आई एम बाइंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द टीसीएस, मुझे टीसीएस के 10 शेयर चाहिए। तो 10 शेयर्स मेरे अकाउंट में आने के लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा? कैश पे करना पड़ेगा, राइट? यस यस यस। लेट्स से टीसीएस का आज का प्राइस है 3000 एंड आई वांटेड टू परचेस 10 शेयर्स, तो आई नीड टू पे अराउंड 30K। यस। तो ये 30K मेरे अकाउंट से जाएगा और मेरे अकाउंट में वो शेयर्स आएंगे। अभी ये आते वक्त भले ही मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मेरा एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग एप्लीकेशन, बट इंटरनली वो जो एक्सचेंज है पूरा, वो सेटलमेंट है, वो जाके आपके बैक ऑफिस में होता है, और बैक ऑफिस इज इंटर रिलेटेड टू योर स्टॉक एक्सचेंज। तो बैक ऑफिस में ये सेटलमेंट होता है। दैट्स व्हाई जनरली हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या है? एनीवे आपका एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज इज हैपनिंग। So that's why it is a medium via we exchange our cash and security, right? But internally जब हम लोग डिटेल में देखेंगे उसके अंदर क्या है, तब जाके ये देखेगा कि आपको हाँ भले ही स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, बट एनीवे वो स्टॉक एक्सचेंज का जो एक्सचेंज हो रहा है वो आपके बैक ऑफिस से हो रहा है। अभी बैक ऑफिस क्या है हम लोग बाद में बात करेंगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? लिस्टिंग ऑफ योर कंपनीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes. बट अभी ये लिस्टिंग तो हो गया, बट मेरा सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम मार्केट में लाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर ये IPO. बैंक आपका फिर से देखेगा कि हाँ वो कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, ठीक है, लिस्टिंग हो गया, फॉर्मेलिटीज हो गए, अभी इनका शेयर्स मार्केट में लॉन्च करना है। तो व्हाट आई नीड टू डू,
I will be launching your Launching security in the market for the very first time, and that particular process we generally call it as a IPO. Initial public offering. yes, perfect. So that particular process we will be calling it as the initial public offering. The initial public offering is nothing but because I am launching my security for the very first time to the end user or to the investor. That's why okay, I'll stop, you start. No? Okay, so yes, launching of IPO मतलब क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं launching of IPO is one of the event which is happening in the stock market. स्टॉक मार्केट में कोई भी नया सिक्योरिटी आता है तो उसको जनरली हम लोग बोलते हैं कि आईपीओ बोलते हैं. आईपीओ मतलब क्यों बोल रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की. ठीक है, आई एम लॉन्चिंग माय सिक्योरिटी एज अ न्यूजन लेट्स से, सो दैट सिक्योरिटी विल बी अवेलेबल फॉर द एंड यूजर. इसके पहले मेरे पास पब्लिक का पैसा था क्या? इसके पहले मेरे पास पब्लिक ने इन्वेस्ट किया था कि मेरे कंपनी में? इसके पहले मेरा खुद का पार्टनरशिप था, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट था. अभी मुझे थोड़ा सा मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद द पब्लिक, राइट? यस Yes, sir. Okay. So that is what we call it as a whenever any new security is launched in the market, that security was not earlier present, but nowadays it is present for the first time for the user. That particular event we call it as the launching of your IPO. So let's say अगर आपका 4 लाख का कैपिटल बनता है, आगे जाके देखेंगे कैसे लॉन्च होता है, क्या होता है. तो 4 लाख का कैपिटल बनता है, तो 4 लाख के लिए हम लोग ये कैपिटल के हिसाब से हम लोग उसका नंबर ऑफ सिक्योरिटीज निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे और हर शेयर का कुछ तो एक बेस प्राइस देंगे, और वो बेस प्राइस से हम लोग सिक्योरिटी मार्केट में लॉन्च करते हैं. उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लॉन्चिंग ऑफ आईपीओ. अभी ये भी कौन करता है? इन्वेस्टमेंट बैंक. Investment bankers. आईपीओ लॉन्च करना अगेन पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट बैंक. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस सर. आईपीओ समझा क्या है? आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स बोलते हैं हम, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज नथिंग बट योर एएमसी सर्विसेज. अभी इन्वेस्टमेंट बैंक आपका एएमसी सर्विसेज भी देता है. व्हाट इज मीन बाय एएमसी सर्विसेज? Asset management company. Maintenance contract. सॉरी, अभी किसी ने तो कुछ तो अलग डेफिनेशन दिया. Asset management company. एसेट मैनेजमेंट. उसके अलावा किसी ने कुछ बोला क्या? एनुअल मेंटेनेंस contract. कॉस्ट होता है नॉर्मल, तो इसका वर्डिंग सर. सॉरी, किसका एनुअल मेंटेनेंस कहाँ पे होता है? ये टर्म यूज होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस. मैकेनिकल इंडस्ट्री मतलब वो कहाँ पे यूज होता है? ऐसे मैं बोलता हूँ मैकेनिकल ब्रोकर कोई भी फील्ड में सर, broker फॉर ईयरली सर्विस कोई भी फील्ड में हो सकता है. ठीक है, ठीक है, दैट इज नॉट द कंसेप्ट हियर. आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. तो जनरली हम लोग बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. मतलब अभी जैसे हम लोग बोलते हैं, आपको ये पता होगा, ये पता है? यस सर. यस सर. पता है. तो एएमसी सर्विसेज मतलब वही म्यूचुअल फंड मैनेज करना. ठीक है, क्लियर है? यस सर. Yes, sir. ओके, अभी म्यूचुअल फंड क्या है? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कितना पता है? यस सर, और सही है. This is also इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म. लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो अपना पैसा शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं. वो हमें कुछ परसेंटेज हमको इंटरेस्ट देते हैं. इंटरेस्ट नहीं देते. ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट है. We are investing our money in stock market through a institution. Yes, They are and that not directly institution I'll be calling it as a AMC. Yes, yes, AMC. correct. Yes. So थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में बोलता हूँ. देखो अभी लेट्स से मैं एज अ लेमन यूजर में मार्केट में जा रहा हूँ और मैं आपको आज बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ये है, आप जाके इन्वेस्ट करो. तो आपको पता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है? TCS में डालना है, इन्फोसिस में डालना है. ठीक है, टॉप रेप्यूटेड कंपनीज है, उसमें तो हम लोग कभी भी डाले तो लॉस में नहीं जाने. बट अगर मुझे डेली रेवेन्यू जनरेट करना है, डेली पैसा कमाना है, तो आई नीड टू लर्न मोर कंसेप्ट अबाउट इट एंड मुझे डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ेगा उसके लिए. यस सर. उतना अपने पास टाइम नहीं रहता. बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल अपने पास उतना टाइम नहीं रहता. तो अभी मुझे सेविंग भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो व्हाट आई कैन डू. तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि अरे मुझे नॉलेज नहीं है, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट द कैपिटल मार्केट, so I'll be giving my money to one of the person who is having expertise in the capital market.
जिसके पास ज्यादा एक्सपर्टीज है उसके पास मैं पैसा देता हूँ. They will be taking care about my money. They will be managing my assets. They will be managing my assets. इसलिए हम लोग बोलते हैं asset management companies बोलते हैं. तो asset management companies वो लोग they will be creating my portfolio. वो सब कुछ पोर्टफोलियो करेंगे और मेरा पैसा जो जैसे जैसे आएगा वो अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेस्ड अपॉन देयर नॉलेज. जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है या जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, फिर से वही प्रॉब्लम यार. कौन है दे नयन माने कौन है? नयन माने. नयन माने. एक बार मैंने नाम नहीं लिया तो आप कैसे ग्रांटेड ले रहे हो क्या आपको? डोंट टेक मी एज ए ग्रांटेड. है ठीक है. तो क्या बात कर रहे थे यार? फिर से 2-3 बार लिंक जाता है, ऐसे ऐसे मत करो प्लीज. फ्लो में होता है, बाकी लोग को भी डिस्टर्ब होता है. हाँ क्वेश्चन है जरूर पूछो, मैं सब कुछ स्टॉप करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, चलेगा. बट अननेसेसरी नॉइज मत क्रिएट करो. मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ ना, मैं भी कहीं पे जैसे जाके बैठ सकता हूँ नॉइज की जगह पे. चलेगा? नहीं सर. ठीक है. ओके क्या बता रहा था यार? लास्ट स्टेटमेंट क्या था? ओके तो AMC वी वर टॉकिंग अबाउट द AMCs. ठीक है. तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, अभी जैसे मैंने बोला कि ठीक है मुझे मेरा नॉलेज नहीं है तो आई विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट. अगर इन्वेस्ट भी किया तो ठीक है मैं इन्वेस्ट कर लूंगा लर्निंग करके इधर उधर से, बट वेदर आई विल बी हैविंग डेडिकेटेड टाइम टू मैनेज माय मनी, इतना टाइम नहीं है अपने पास. तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी अपॉइंटिंग वन पर्सन एज अ फंड मैनेजर, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली म्यूचुअल फंड जो मैनेज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं. भले ही वो मैं पहले बोलता हूँ दोज आर आल्सो ब्रोकर, बट उसको हम लोग रेप्यूटेड नाम देते हैं कि हाँ ठीक है दोज आर फंड मैनेजर्स. वो भी ब्रोकर है, but generally we are not using broker as one concept for the AMC companies. तो AMC जो मैनेज करता है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं फंड मैनेजर बोलते हैं. तो ये लोगों का फंड कितना है, तो जनरली आपके हर एक म्यूचुअल फंड में आप कहीं पे भी पैसा डालते हो उसका एक फंड मैनेजर रहता है, who is having expertise in the investment banking and capital market. तो उसको पता है कि कितना पैसा कहाँ पे डालना है, उसको पता है. और वहां से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वहां से उसको पैसा जनरेट करना है. लेट्स से अभी ये पैसा डालते हो वेदर ही विल बी इन्वेस्टिंग वन पर्सन ओनली. तो वो क्या करते हैं जनरली म्यूचुअल फंड में हम लोग, देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्यों बोला है, तो मेरा एक का पैसा नहीं है. म्यूचुअली वी आर इन्वेस्टिंग इन वन एरिया. जैसे मैंने पैसे डाला 100 रुपीज, ज्ञानेश्वर ने डाला लेट्स से, और आशीष डाल रहा है, आरती इज आल्सो पुटिंग, अभी इज आल्सो पुटिंग. सो लाइकवाइज दीज पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर मनी in one of the area where this particular AMC is managed by the one of the fund manager. That fund manager will be collecting money from all the people. Let's say 193 participants are there, before it was 207. So if 193 person are investing their money, ठीक है 1000 किया तो कितना हो जाएगा 1 month का, कितना हो जाएगा 1000 भी किया तो 1.9 lakh, approximately 2 lakhs. Yes sir. Yes. तो ठीक है. तो जैसे ऐसे ही वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड जैसे वो मैनेज करने वाले लोग क्या करते हैं, बहुत सारे यूजर्स से पैसा लेते हैं एंड दे विल बी टेकिंग दैट मनी एंड दे विल बी व्हाट जो भी अभी अब जैसे हम लोग बोलते हैं हर एक फंड का साइज होता है, तो लेट्स से 2.3 CR का मेरा साइज है, तो 2.3 CR आई हैव टेकन फ्रॉम द मल्टीपल यूजर्स. वो पैसा लेके मैंने जाके कहीं और सेक्टर में डाल दिया. अभी मुझे नॉलेज है, आई विल बी पुटिंग माय मनी, ये मेरा 2.3 CR का जो फंड है वो मैं जाके कहीं पे डाल दूंगा, कहीं पे TCS पे डालूंगा, कहीं पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कहीं पे बॉन्ड्स में डालूंगा, कहीं पे डेरिवेटिव्स में डालूंगा. तो मुझे नॉलेज है, आई नो दैट कि कहाँ से पैसा आ सकता है, कहाँ से ज्यादा लिक्विडेशन कम है, ये सब कुछ सोच के मैं आई विल बी पुटिंग माय मनी. ये पैसा मैं जहां पे इन्वेस्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली जहां पे वो पैसा जैसे जैसे ग्रो होता रहेगा, ऑटोमेटिकली इंटरनली आपका पैसा ग्रो होगा. Yes sir. एनीवे आपका भी 1000 का वहां पे कंट्रीब्यूशन है. तो अगर मैंने 1.3 CR का अगर मेरा पोर्टफोलियो बढ़ के अगर 1.4 CR हो गया, तो जो वो 0.1 CR जो बड़ा है वो किसका प्रॉफिट है, ये सब लोगों का प्रॉफिट है, राइट? Correct sir. क्लियर है? Yes sir. That is how the mutual fund is running. So mutual fund क्यों बोला है इसको? Mutually we are investing in one portfolio and wherein that particular asset management company will be managing my particular portfolio. वो पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, उनको नॉलेज है, उनके नॉलेज के लिए दे आर चार्जिंग समथिंग. तो उनका ब्रोकरेज रहता है, जो भी चार्जेस रहता है, या हम लोग बोलते हैं टैक्सेस तो अलग चीज है, बट चार्जेस जो चार्ज करते हैं वो लोग अपने यहाँ पे इन ऑर्डर टू मैनेज योर मनी, तो दैट चार्ज विल बी देयर ब्रोकरेज. तो जनरली ब्रोकरेज नहीं बोलना है उनको, ब्रोकर्स नहीं बोलना है, दीज आर द रेप्यूटेड पर्सन्स इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड. तो हम लोग उनको बोलते हैं फंड मैनेजर बोलते हैं. मेकिंग सेंस? Yes sir. म्यूचुअल फंड तक क्लियर है सबको? Yes sir. अभी ये पैसा कैसे बढ़ता है, आपको क्या मिलता है, फिर कैसे बढ़ता है, क्या है, हम लोग जब इन डिटेल में सिक्योरिटी आएगा तब जाके वो सिक्योरिटी में बात करते हैं.
ठीक है ठीक है अभी सर। क्लियर है सबको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शंस क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंक ये सारे फंक्शंस में काम करता है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट मैंने एक हाई लेवल पे बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। नाउ वी विल बी वर्किंग इन ओनली वन सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय माय इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज अ ट्रेडिंग एप्लीकेशन। तो ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन अपने को टेस्ट मारना है, इसका हमने डेवलपमेंट किया है, इसका हमने टेस्ट किया है, ये बोलना है। और ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, कैसे कैसे बाय होता है, कैसे सेल होता है, बाय में क्या क्या कंसेप्ट होता है, सेल में क्या क्या कंसेप्ट होता है, what are the order types I can use, what are the securities I can trade, ये सब कुछ सीखना है अपने को। that is nothing but अभी ये सीखते वक्त डायरेक्टली हम लोग एप्लीकेशन खोल के नहीं देखेंगे, उसके पहले we should be learning about business first. So business पहले कस्टमर का देखो, उसके बाद we can talk about the application. Making sense? सर ट्रेडिंग ऍपचं नाव विचारतील का? Maybe they will be asking, अब नाम देने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि एनीवे हम लोग वो एप्लीकेशन अभी ऑलरेडी वो एप्लीकेशन लाइव है और वो लोग एक्सेस भी करने जाएंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इट ऐसा, बिकॉज वी आर टेकिंग कस्टमर्स फ्रॉम द आउटसाइड। पण तुम्ही कोणत्या वेबसाईट काम कर कस्टमरचं नाव सांगू शकतो ना आपण। ओके ठीक आहे। आउटसाइड आहे ते सर, मग तुम्ही कोणत्या ऍप साठी काम करत होतात असं विचारतील ना? कस्टमरचं नाव सांगायचं ना आपण, कोणत्याही का? हा कोणत्याही एका, म्हणजे मी तुमचा रिझ्यूम बनल्यानंतर तुम्हाला सांगेन कोणतं लावायचं काय लावायचं। हे दिस इज जस्ट एग्जांपल, नहीं तो यहाँ से आप उठा के मत डालो। हाँ सर रिझ्यूम सॅम्पल्स नाही आहेत ग्रुपवर, ड्राईव्हला शेअर आहेत। ऑटोमेशन ग्रुप होता है, ऑटोमेशन बात पे आप एक बार डाल दो कहाँ पे, उसका लिंक क्या है जो डाल दो ग्रुप में। यस सर। थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी एटलीस्ट बेसिक समझा कि क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। यस सर। यस सर। अभी तक किसी को नहीं समझा ऐसा कोई है क्या? ये क्या चल रहा है सर, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। अगर है तो कितने लोग हैं? ठीक है सर, सामने से थोड़ी ना ऐसे आके बोलेंगे हम लोग को नहीं समझे, तो चुप बैठने वाले होंगे सर। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है सर, थोड़ा जे झाले ते समराइज करता का? समराइज में ऐसा सच मैंने कुछ अभी तक मतलब मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन ही दिया एक्चुअली। तो इन्वेस्टमेंट बैंक हम लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हम लोग काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक इज वन ऑफ द एरिया वेयर वी वर्क। तो इन्वेस्टमेंट बैंक इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर व्हिच वी डेवलप द ट्रेडिंग एप्लीकेशन। तो अपने को वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन ही सीखना है। बट मैंने अभी बताते वक्त मैंने क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट बैंक कौन कौन से एरिया में काम करता है। तो कौन कौन से एरिया में काम करता है? कॉर्पोरेट कस्टमर्स को कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मर्जर एक्विजिशन करते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। प्लस आपके कंपनी अगर नया कंपनी कुछ आ रहा है तो उनके शेयर्स लॉन्च करते हैं, उनकी कंपनी को लिस्टिंग करना, ये काम सब कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक। प्लस इन्वेस्टमेंट बैंक कैन प्रोवाइड दी एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज है। जैसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर सकते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड है, जैसे आप लोग बोलते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो दीज आर दी सम ऑफ द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो ये काइंड ऑफ सर्विसेज आल्सो प्रोवाइडेड बाय योर इन्वेस्टमेंट। इतना ही देखा है अभी तक। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक एटलीस्ट बेसिक? यस सर। सिर्फ लॉन्च करते हैं। यस सर। तो अभी आगे क्या देखना है अपने को कि आप कौन कौन से सिक्योरिटीज में काम कर सकते हो, कौन कौन से सिक्योरिटीज में आपने काम किया है, या आपका बेसिक सिक्योरिटीज जो है वो सिक्योरिटी क्या है वो देखना है अपने को कि सिक्योरिटीज क्या है, व्हाट आर द सिक्योरिटीज वी कैन ट्रेड ऑन द कैपिटल मार्केट। So once we are done with the securities, we will be talking about, I guess ये security नहीं है, मैंने just एक example के लिए दिया। तो वो कैसे लॉन्च करते हैं या जो भी है कि आईपीओ कैसे लॉन्च होता है, जो होता है आगे जाके फिर कैसे कैसे शेयर्स आते हैं। अभी रिसेंट आईपीओ लॉन्च हुआ था किसका, या हुआ क्या एलआईसी का या नहीं हुआ? पेटीएम इन्वेस्ट किया वो क्या हुआ? पहले हुआ था, फिर बाद में पेटीएम हुआ है। जोमेटो हुआ था क्या बीच में? जोमेटो का भी आया था ना? यस सर आया था। नहीं सर, जोमेटो का आया था। सर अभी भी आईपीओ चल रहे हैं बहुत सारे। अभी रिसेंटली स्टार हेल्थ आया सर। हाँ अभी स्टार हेल्थ आया। अभी आया सर स्टार हेल्थ। कौन सा है? स्टार हेल्थ एगा इंडस्ट्रीज। स्टार हेल्थ बोल रहे हो? ओके हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी भी आईपीओ चल रहे हैं। तो आईपीओ हम लोग जो परचेस करते हैं या कैसे, अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है ना? नेक्स्ट ईयर आएगा आएगा आएगा। कितने दिन से बात कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है?
अभी ये आईपीओ क्यों आ रहा है इसका मार्केट में, थोड़ा सा बताओगे? वो फंड राइज करने वाले To raise funds. तो उनके पास पहले फंड नहीं थे क्या? नो सर, ड्यू टू For funds. हो गए ना सर, ऑब्वियसली। तो ये क्यों कर रहे हैं अभी? Expand इनका पहले भी करने अभी के चल लिए। रहा था अच्छे से, भी ये क्यों कर रहे हैं एक्सपांड करने के लिए सर, इंडियन मार्केट आर वेरी वन बाय वन? क्या करने वाले? एक्सपांड करने कंपनी बढ़ाने के लिए। Always that should not be a motive. Always that should not be a motive. अभी कभी कभी हो सकता है, but always that is not a motive. ऐसा है। They use money, people's money. Okay. nowadays in Indian LIC के economy अंदर Old LIC investor बाहर government निकल रहे company थे। ना। ठीक है अभी देखो LIC में अभी तक लेट्स से अभी LIC रनिंग में है, ठीक है, तो कंपनी है तो इन्वेस्टर्स भी रहेंगे, अभी कोई तो बड़ा इन्वेस्टर रहेगा। यस यस सर। Yes sir. ओके, इसमें एक बड़ा इन्वेस्टर करके हम लोग जैसे बोलते हैं गवर्नमेंट, पता है सबको? हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं ना जनरली अभी तक। यस यस क्यों बोलते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक इसमें ज्यादा है, गवर्नमेंट का परसेंटेज इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, राइट? यस नो? यस सर। तो अभी गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि नहीं मुझे मेरे स्टेक बेचने हैं, मेरा जो स्टेक है मुझे बेचना है, तभी जाके हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या बोल रहे हैं हम लोग चीजें अभी तक? प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने अपने स्टेक बेच दिया तो उनका वहां पे कुछ ये नहीं रहेगा, वहां पे क्या बोलते हैं हम लोग? कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा। रहेगा। दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग देयर स्टेक। जैसे वो सेल करेंगे तो वो किसी ना किसी को तो परचेस करना पड़ेगा, या किसी ना किसी से तो हम लोग को वो फंड रेज करना पड़ेगा। उनका अगर वो लोग वो अपना पार्टनरशिप निकाल रहे हैं तो किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा, तो इसीलिए दैट्स व्हाई LIC इज गोइंग पब्लिक, राइट? यस तो पब्लिक क्यों जा रही है कि ये जो गवर्नमेंट का स्टेक था वो पब्लिक के पास दे दो और पब्लिक से पैसा लेके अपना बिजनेस रन करो। मेकिंग सेंस? Yes. यस सर। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं हम लोग कल। यहाँ तक क्लियर है सबको? एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया आ गया क्या चल रहा है? यस सर, क्लियर सर। सर एक बार कैपिटल मार्केट के बारे में बताओ ना सर। कैपिटल मार्केट के बारे में क्या बताना है? कुछ भी बताओ, समझ में नहीं आया इतना। अरे कैपिटल मार्केट जैसे आपका APMC मार्केट है, आप सब्जी मार्केट में जाते हो? हाँ जाता हूँ ना। सब्जी मार्केट में जाते हो आप, कुछ Yes, परचेस sir. करते हो वेजिटेबल्स, यस सर। तो हम लोग कुछ तो बाय करते हैं, कुछ तो पैसा देते हैं, कुछ तो बाय करते हैं, राइट? कुछ तो एंटिटी बाय करते हैं। तो वैसे ही ये कैपिटल मार्केट एक वर्चुअल एंटिटी है जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ बाय करेंगे या कुछ ना कुछ सेल करेंगे, राइट? उतना ही है। अभी ये कुछ ना कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ मतलब ये जो बोल रहा हूँ ना, इसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटी। तो कोई कंपनी का सिक्योरिटीज हम लोग बेचेंगे, कोई सिक्योरिटी खरीदेंगे। तो दैट इज व्हाई बाय एंड सेल ऑफ यूर सिक्योरिटीज हैपनिंग इन वन ऑफ द एरिया, वो एरिया को हम लोग बोलेंगे कैपिटल मार्केट। वो दिखता नहीं है बट बिहाइंड दिस सब कुछ कैपिटल मार्केट में चल रहा है, ठीक है? यस। मतलब जो ट्रेडिंग एप्स है वो कैपिटल मार्केट में आते हैं क्या? कैपिटल मार्केट का एरिया है, यस यस यस। ओके जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग मार्केट। अभी ये देखो अभी उसमें मैं बोल सकता हूँ APMC मार्केट में आपके जो होलसेलर है वहां पे वो लोग क्या करते हैं, किसी और बंदे को बेचेंगे। जो लेट से मेरे रोड साइड रिटेलर है, रोड साइड वाला सब्जी वाला है, वो जाके कहाँ से परचेस करके आता है? होलसेलर्स है जो मतलब सप्लाई करता APMC है। मार्केट में लेट से फार्मर वहां पे लेके जाता है, वहां से हम लोग APMC मार्केट से वो लोग परचेस करते हैं। वहां से वो 10 रुपए में परचेस करेंगे, हम लोग को जब रिटेल यूजर को मिलेगा तब कितने मिलेगा? 20 रुपए में सर। 20 रुपए में मिलेगा। तो अभी जैसे हो गया वो जो वहां से जाके परचेस करके लाता है वो बोलेंगे ये स्मॉल ब्रोकर्स है, ठीक है? ये स्मॉल ब्रोकर्स है। ब्रोकर मतलब आप जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ये इन्होंने जाके रजिस्ट्रेशन किया और उन्होंने अपने को प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ से जाके परचेस करो। इंस्टेड ऑफ आई एम गोइंग इन द APMC मार्केट, आई एम परचेसिंग ऑन बिहाफ ऑफ द APMC मार्केट से ही आ रहा है पूरा, बट मैं परचेस कर रहा हूँ जीरोधा से। क्यों? क्योंकि वो जीरोधा इंटरनल लिंक है किसके साथ? स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो आपका जो APMC मार्केट है दैट विल बी ट्रीटेड एज यूर स्टॉक एक्सचेंज, जहां से पूरा एक्सचेंज हो रहा है, राइट? यस सर। थोड़ा सा समझ में आया? इसका वर्क फ्लो वगैरह है, आगे जाके देखेंगे तब जाके थोड़ा सा डिटेल में क्लियर होगा, ठीक है? सर हम कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्स कह सकते हैं क्या? ये डिपेंड्स अपॉन यूर एस्पिरेशन। अभी आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म में कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हो, तो आपके उस हिसाब से आप बोल सकते हो। तो जनरली ये इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टर्स माइंडसेट कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप बोल रहे हो कि ठीक है मेरा नीड ऐसा है कि मुझे 2 साल के बाद पैसा लगेगा, तो विल बी इन्वेस्टिंग फॉर शॉर्ट टर्म, राइट? यस। आप बोलोगे नहीं मुझे अभी नहीं लगने वाला, 15 साल के बाद के लिए, फ्यूचर के लिए मैं सेव करके रख रहा हूँ, तो यू विल बी इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, राइट?
तो ये डिपेंड्स अपॉन यूर माइंडसेट कि हाउ यू ट्रीट दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। तो आपको कहाँ पे आपका जो नीड है, आपका जो माइंडसेट है, इसके लिए भी देखो हर चीज को, ये अभी जो हम लोग इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं ना, इसका भी प्लानिंग होता है पूरा, कि हर चीज का आपको जाके इन्वेस्टमेंट सोच के फिर प्लानिंग करते हो, फिर इस इन्वेस्टमेंट करते हो। आप जो ट्रेडिंग करते हो ना डायरेक्टली कोई तो किसी को बता के ये कर रहा है, वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, तो जो भी है ना, पूरा अपना नीड देखो, अपना मेरा नीड क्या है, मेरा पर्पस क्या है। ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट में दो अलग ऑप्शन है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या है आगे जाके पढ़ेंगे। बट जो भी है, आपका पहले नीड आइडेंटिफाई करो कि मेरा नीड कब है, क्या है, और मेरे पास बचता कितना है, और ये प्लानिंग करते वक्त भी मेरे पास मेरा डेली एक्सपेंडिचर कितना है, वो एक्सपेंडिचर कितना है, मंथली कितना है, और कितना मैं सेव कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कुछ फ्यूचर नीड आती है, कुछ इमरजेंसी आते हैं, उसके लिए मैं बचा के रख रहा हूँ कि नहीं, ये सब कुछ सोच के आपको इन्वेस्टमेंट करना। नहीं तो है ये ठीक है, मेरा 50,000 सैलरी है, मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ म्यूचुअल फंड, ऐसे नहीं कर सकते, राइट? यस यस सर। Yes, sir. There are multiple expenses. ठीक है, वो सब कुछ जो एस्पेक्ट है ना, ये सब कुछ अपन देखेंगे। इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, बट स्टिल हम लोग एक बार विजिट कर लेंगे उसको। ठीक है, आई गेस वी आर गुड फॉर टुडे। विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो 7 AM। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके सर। नाइस डे तो सर। जो ऑफिस जाना चाहते हैं आप, मैं जल्दी बंद कर रहा हूँ क्योंकि आई वांटेड टू टेक एटलीस्ट 2 hours सेशन, बट अभी थोड़ा सा डेढ़ घंटा हो गया। ठीक है, विल स्टॉप हियर बिकॉज आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग। ओके सर। ओके सर। सर हेलो। हाँ मॉर्निंग 7 AM सॉरी, गुड। बोला सर ऍक्च्युली ते व्हिडिओज तुम्ही जे ड्राईव्हला पाठवता, ते तुम्ही पाठवता की दुसरं कोणी पाठवतं? म्हणजे बलराज तो पाठवतो का? जर तो पाठवत असेल, काय झालं वेट, नाही ते खूप लेट होत आहेत ना, असं म्हणतोय मी. 6 वाजता येत आहेत. मला म्हणायचं होतं, जर तुम्ही म्हणजे नाही का दुसऱ्याकडे कोणाकडे दिलं तर ज्ञानेश्वरीकडे वगैरे, तर 12-1 वाजता येऊन जातील असं. नंतर काय होतंय की ते ग्रुप जीडीचं टायमिंग मोस्ट ऑफ द संध्याकाळच आहे ना आमचं, म्हणून म्हणतो. मग ते व्हिडिओ रिवाइज करायला थोडस लवकर अपडेट केलं तर सर ते हे करून डिस्कस करता येतं. हाँ सर। ओके ठीक है, सो किसको बोल रहे थे आप? ज्ञानेश्वर। ठीक है, मैं आई गिव यू एडिट एक्सेस फॉर ज्ञानेश्वर एंड यू, या ज्ञानेश्वर और बलराज है क्या अभी सेशन में? नहीं है। नहीं, ज्ञानेश्वर को ही दे दो। हाँ, ज्ञानेश्वर का मेल आईडी मुझे सेंड करने के लिए बोला। आई विल बी गिविंग हिम एडिट एक्सेस, और मैं मेल सेंड करते हुए ये दोनों को करूंगा, दोनों देख के कोऑर्डिनेट करके अपलोड करते। ओके सर, ठीक है। चलो, मॉर्निंग में तो ऑटोमेशन का लेक्चर है, फिर कल कैसे होगा? फिर आप 7 बजे बोल रहे हैं। तो कितने लोग ऑटोमेशन करते हैं? 1-2 लोग होंगे, मुझे पता है। नहीं सर, नहीं सर, मैं भी कर रही हूँ। कितने कर रहे हो? 3-4 लोग? सब कर रहे मैं भी कर रहा हूँ सर। हमारा ये जो है ना 8 बजे की जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा बंदे उसमें अपने इससे ही अपने बैच से ही है, 25 बैच से। ऑटोमेशन प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट आहे ना, मग थोडे दिवस प्रोजेक्ट करा. जे कोणी ऑटोमेशनला असतील ना, हे बघा, ज्यांना करायचं ते लोक करा, बाकीचे लोक सोडून द्या, नंतर तुम्हाला होईल परत सिक्वेन्स। मैं एक खुद लेके बैठा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा मेरा ऐसा। म्हणजे सर आता उद्या किती वाजता आहे ते सांगा. उद्या सकाळी 7 वाजता हीच लिंक जॉईन करायची सगळ्यांनी, ज्यांना पॉसिबल आहे त्यांनी करा, अदरवाइज जे ऑटोमेशन करतात ते कंटिन्यू करा. ओके सर, डन. ओके सर, थँक्यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे. लिव्ह होतं. Same to you, sir. Bye. Yep. थँक्यू सर. Yep. थँक्यू सर. लवकरच